Good morning, student. I am Rajendrasinh Mori, your maths teacher from the Gyanmanjari Vidyapith Mahuva. So today we just going for the new concept, that is Roman numerals. Whatever the Roman numerals we have to remember today, and in your daily routines, whenever it required, this all Roman numerals is very useful for you. So before starting of this Roman numerals, we just taking about that in the previous lecture we discussed about some methods for the rounding of numbers and estimations. So I hope that everyone has cleared this concept estimation. So this estimation procedure we have to useful when we are not needed for the actual numbers or actual values. That time we are going for the estimations or some kinds of the approximation. So today we learn about the Roman numerals. So let us move on it and how to solve this, how to remember these Roman numerals. Because whatever the things I explained here, you just take it at your today's homework also. So first things I be cleared that whatever the thing I explaining one by one, that things also be put simultaneously with the while you watching a video. तो जब आप वीडियोस देख रहे हैं तभी आप अपने पास अपनी रफ बुक मेंशन कीजिए। उसमें जो भी लेक्चर्स नोट्स होते हैं, मतलब मैंने बोला होता है कि ये लेक्चर ये पर्टिकुलर एग्जांपल है, वो एग्जांपल्स को आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि द थिंग्स इज डूइंग हियर दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट वाचिंग पूरा वीडियोस जो है वो अच्छी तरह से नहीं देखते। So what happens here that you can't be understands that what which things is included in your uh, video lectures, or which things is included into the textbook, which things I am given homework from the textbook or NCERT books, that you can't understand. So be careful about that. Whenever you watch the video, you start from the first position to the last position. Is it clear? So today we are going for the new concept, that is Roman numerals over here. So just we have to take it out. First thing is that here consider the some Roman numerals here, that, and this is the special numbers. आप समझते हो कि special number किसको बोलते हैं? So first two tables are displayed in your screen. That is also be available on your supplementary book, so you can also directly see from that book. But whenever you watch these videos, that time you must be cleared about that this is a Roman numerals is, and what is a special numbers we considered. So special numbers means a few numbers called special numbers are converted directly into the Roman numerals using the table given below. So first एक ऐसे नंबर से, ऐसे स्पेशल नंबर से, that is called a special number. Why it is called a special number? Because they all are converted directly into the Roman numerals we using of this table. तो अब ये टेबल से ही डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। सपोज मान लो कि 1 से 10 का न्यूमरल्स आप सबको पता है, 1 2 3 4 से लेके 10 तक का न्यूमरल्स आप देख सकते हो। So Arabic numerals we can say that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पे आपको इंडिकेट्स किया गया है। तो ये जो इंडिकेशंस आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6, we can say that Roman 1, Roman 2, Roman 3, Roman 4, Roman 5 6 7 8 9 and 10. नाउ अब वही चीज को आप सेकंड वन टेबल में आप देख सकते हो कि सपोज हमारे ऐसे नंबर से 20 30 40 50 60 70 80 90 100 500 एंड 1000 इज देयर। तो आप देख सकते हो 20 जो है वो 10 का कंसिडरेशन आप देख सकते हो, उसका रोमन न्यूमरल्स है एक्स, कैपिटल एक्स ऐसा दिखता है आपको। सो दैट इज अ एक्स, मतलब वी कैन से दैट इट्स न्यूमरल्स ऑफ 10। सो 10 मतलब 20 का जब हम करेंगे तो 20 मतलब 2 टेंस होता है, तो वी कैन डायरेक्टली ऐड लाइक 2x। समझ में आ रहा है ना कि डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम स्पेशल नंबर्स बोलते हैं। तो 20 जैसे कम कंसिडर हुआ, वैसे 30 मतलब 3 होता है। सो x कितनी बार, ये रोमन कितनी बार यूज होंगे, 3 टाइम।
40 है तो आप उसमें देख सकते हो कैसे कन्वर्जन हुआ है। 40 में आप देख सकते हो कि पहला x है और दूसरा l यूज हुआ है। देख सकते हो 40 में x एंड l, आपको ये याद भी रखना है और उसका कन्वर्जन प्रोसीजर भी याद रखनी है। सो x एंड l इज देयर 40। फिर 50 में आप देख सकते हो l ही है। 60 में आप देख सकते हो 50 में l है तो 60 और एक 10 बढ़ जाता है तो l x हम यूज कर सकते हैं। 70 में फिर से l x यूज कर सकते हैं। 17 आर ऑल्सो भी यूज, सेम थिंग फॉर द 80। आप देख सकते हो 20 से 80 का कन्वर्जन जो है वो एकदम से सिमिलर है। तो ये चीज आप अच्छी तरह से याद रख लो, ये पूरा टेबल है वो याद रख सकते हैं आप। 90 को आप कंसीडर करो तो वहाँ पे और एक न्यूमरल्स रोमन्स ऐड होता है, वो कैपिटल C। सो एक्स सी दैट इज 90। 100 को हम C से डिनोट करते हैं, 500 को हम D से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से, और 1000 को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो ये पूरी चीज, ये पूरा टेबल है दोनों, वो अपनी फेयर बुक में रोमन न्यूमरल्स अंडर द हेडिंग ऑफ रोमन न्यूमरल्स आपको लिख लेना है। सो दैट इज ऑल आर द स्पेशल नंबर्स। सो लेट अस मूव ऑन इट। नेक्स्ट वन थिंग, अब आप समझो कि स्पेशल नंबर्स की बात तो हो गई, अब अदर नंबर्स की हम बात करें। ऑल अदर नंबर्स आर रिटन यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंबल। तो पहली जो चीज थी वो तो आपको कंपलसरी याद रखनी ही है। 1 से 10 का याद रह जाए तो लगभग से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 का याद रह जाए। So, if all others are written using a combination of symbol, let us look at the rules to write these numerals. अब ये सभी के लिए पर्टिकुलर रूल है, और रूल हमें लिखते जाना है, सभी रूल को मेंशन करना है। तो आप पहला, आज का होमवर्क में पहला दोनों टेबल जो अभी मैंने बताए 1 to 10 और 20 से लेके 100 तक, 100, 200 और 500 और 1000 तक का जो भी रोमन न्यूमरल्स हमें स्पेशल नंबर्स में देखा, वो पहले स्क्रीन आपको पूरी होमवर्क में लिखनी है। दूसरी, यहाँ पे सभी रूल्स को मेंशन करते जाना है एंड यू हैव टू राइट इन योर फेयर बुक। फेयर बुक में ही डायरेक्ट आप लिख सकते हो, एंड देन दैट पर्टिकुलर पिक्चर्स यू शेयर विथ मी एज टुडेज होमवर्क। Okay, so first one, rule number 1 is there, if a symbol is repeated, आप देख सकते हो कि जो सिंबल रिपीट हो रहा है, its value is added as many times as it occurs। मतलब ऐसा है कि सिंबल यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 + 1, तो कितनी, सो इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट occurs, तो कितनी बार ऐड होगा, 2। 10 + 10 है तो वो 20 हो जाएगा। आप देख सकते हो कि एक सिंबल है रोमन का, यहाँ पे देख लो एक है, यदि ये 2 बार होता है तो वो नंबर बन जाता है 2, क्योंकि ये दोनों 1 1 है, तो 1 + 1 क्या होता है, 2, लाइक दैट। फिर x मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्पेशल नंबर में से हम देख सकते हैं 10, तो 10 + 10 यानी 2 बार रिपीट होता है तो वो बन जाता है 20। यदि 3 बार होता है दैट टाइम इट बिकम्स ए 30। तो ये तीनों चीज हमने स्पेशल कैरेक्टर्स में भी देख ली। तो ये तो इजी है, ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कभी कोई एक सिंबल 3 से ज्यादा टाइम के लिए रिपीट नहीं होता है, दैट इज अ रूल। कितनी बार मैक्सिमम होता है रिपीट, 3 टाइम्स, 3 से ज्यादा, नॉट मोर देन द 3 टाइम्स। ओके, सो V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। आप देख सकते हो कि इसमें और भी एक रोमन से, जिसमें फर्स्ट रूल में बताया गया कि कैपिटल V, कैपिटल L, कैपिटल D, इसका कभी रिपीटेशन होता ही नहीं। सो दैट इज ऑल्सो बी रिमेंबर्ड। तो ये रूल नंबर 1, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, यू हैव टू राइट विद द एग्जाम्पल्स इन योर फेयर बुक, एंड दैट particular pictures you shared with your today's homework. Is it clear? Second one, rule number 2. Now, if a symbol of a smaller value is written to the right of a symbol, if
फिर से मैं बोल रहा हूँ, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू is returned to the right of a symbol of greater value, its value gets added to the value of the greater symbol. So it's interesting. आप देख सकते हो V and I, आप देख सकते हो इसमें V and I, V मतलब ग्रेटर है और I मतलब स्मॉलर। तो यदि if a symbol of smaller value is written to the right, जब स्मॉलर वैल्यू का सिंबल आप राइट साइड पे लिखते हो, a symbol of greater value, its value gets added to the value of greater symbol। मतलब ऐसा हुआ कि आप ग्रेटर सिंबल्स में आप स्मॉलर वैल्यू, मतलब स्मॉलर वैल्यू जो ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में यदि आपने लिखी है, आती है, rather not लिखी, but if it is comes into the right side, that time what will happen, you have to give the added the value of the greater symbol। आपको एक ग्रेटर सिंबल में ये वैल्यू ऐड करनी है। मतलब एक ग्रेटर का v है तो 5 है, I है मतलब 1 है, सो 5 प्लस 1 क्या होगा, दोनों का टोटल हो जाएगा, दैट बिकम्स 6। सिमिलर एक्स आई इसको मेंशन करें तो आप देख सकते हो ग्रेटर वैल्यू एक्स है और स्मॉलर कौन है 2, सो 10 प्लस 1 यानी हो गया 12। आप यहीं से सभी चीज को रूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और लास्ट वन है आपका एक्स का, एक्स एल एक्स वी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, एल एक्स एंड वी। अब एल एक्स एंड वी का कंसिडरेशन में आप यूज करें तो एल मतलब ग्रेटर, एक्स एंड वी बोथ आर द स्मॉलर। सो 50 में से 10, 50 प्लस 10 प्लस 5 को हम कंबाइन कर ले तो इट्स बिकम्स 65। समझ में आ गया? तो कैसे यूज करना है, किसी कोई नंबर को हम यूज करना है, 12 को हमें यूज करना है, 12 का रोमन क्या है, रोमन न्यूमरल्स क्या है, तो हम पहले क्या यूज करेंगे, ग्रेटर वाला यानी 10 का x। फिर इसमें हमें 2 की जरूरत है, 10 तो आ गया तो 2 की जरूरत है, तो हम क्या यूज करेंगे 1 1, सो 10 प्लस 1 प्लस 1, सो दैट्स वाई इट बिकम्स 12। सिमिलर वे हमें 6 नंबर्स को ऐड करना है तो हमें 5 नंबर्स पता है, सो वी हैव टू यूज v, then we are using v plus 1, that's why 6। at the last l x and v know that 65, तो 50 तो हमें पता ही है, दैट इज। तो पहली जो स्क्रीन मैंने बताई उसमें से पहले आपको रोमन न्यूमरल्स है वो दोनों टेबल अच्छी तरह से रट लेने हैं, याद रख लेने हैं, रिमेम्बर्ड करना है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इजी। तो 50 का पता है तो 50 में और एक 10 डालेंगे यानी x होगा, फिर उसमें 5 डालेंगे यानी v होगा, सो l x v दैट इज द रोमन न्यूमरल्स ऑफ 65। समझ में आ गया? तो इसी तरह से रूल 2 को यूज करेंगे। नेक्स्ट वन दैट इज रूल नंबर 3 इज देयर, इफ a symbol of smaller value is written to the left of a symbol of greater value, its value is subtracted from the value of the greater। greater symbol में से अभी subtract करना है, जैसे कि रूल नंबर 2 में हमने सीखा कि ग्रेटर में ये स्मॉलर में स्मॉलर जब वैल्यू राइट साइड होती है तो ग्रेटर में वो स्मॉलर वैल्यू में ऐड करते थे। अब क्या करेंगे, स्मॉलर वैल्यू हमारी लेफ्ट साइड है तो स्मॉलर वैल्यू जो है उसमें से ग्रेटर वैल्यू है वो हम सबट्रैक्ट करेंगे। सो लाइक दैट वे, यदि हम 5 है तो 5 हमारे पास ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर में से हम 4 लाना है तो 5 हमारे पास है, तो 5 में से हमें 1 को निकालना है तो हम स्मॉलर साइड कहाँ पे रखेंगे, आगे। सो आई एंड वी, तो राइट लेफ्ट साइड पे कौन होगा, दैट इज ऑलवेज द स्मॉलर वैल्यू, एंड राइट साइड क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू। तो ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। सो 5 माइनस 1 दैट्स वाई 4 इज दैट। इट्स वेरी इजी थिंग। वैसे ही 50 को कंसिडर करना है तो ग्रेटर है वो क्या होगा, L होगा, और स्मॉलर क्या होगा, X। X विल बी रिटन इनटू द लेफ्ट साइड एंड L विल बी रिटन इनटू द ग्रेटर साइड, बट हम सब्ट्रैक्शन करेंगे
15 minus 10 का, so we will get at 40. तो 40 नंबर्स कैसे लिखा जाता है, 90 नंबर कैसे लिखा जा सकता है, दैट वी कंक्लूड फ्रॉम द रूल नंबर 3. तो ये सभी चीज, सभी रूल वेरी इजी है. रूल नंबर 4, V, L and D are never written to the left of a symbol of greater value. कभी भी आप ग्रेटर वैल्यू की लेफ्ट साइड आप V, L and D नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ V, L and D are never subtracted. That is the rule number 4. Like that way, IV, so 5 minus 1 is there, so that becomes 4. So rule number 5 is there, I can only be subtracted from V and X. मतलब I, मतलब फर्स्ट न्यूमरल्स जो है, इट कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X. So IV and IX, that becomes possible, and X can only be subtracted from L, M and C. तो ये सभी चीज के रूल्स आप एक बार सभी लिखेंगे, उसके नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे, और पहला जो टेबल मैंने दिया है स्पेशल नंबर्स का, तो ये सब चीज अप टू द रूल नंबर 5, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन टूडेज होमवर्क. फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीडियो, रोमन न्यूमरल्स का फर्स्ट स्क्रीन जिसमें दो टेबल दिया गया है, 1 to 10 का न्यूमरल्स, और बाकी सम स्पेशल न्यूमरल्स जो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 है, 200 है, 500 है और 1000 है, वो सभी के रोमन न्यूमरल्स आप टेबल्स में लिखेंगे. फिर बाद में मैंने एक्सप्लेन किए हैं आज 5 रूल्स. सो रूल नंबर 1, उस रूल पूरा लिखना है, और देन आफ्टर एग्जाम्पल्स गिवन है वो रूल नंबर 1 में लिखेंगे, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5. ये पांचों पांच रूल भी आप अपनी फेयर बुक में ही सीधा लिखो, और पहला टेबल लिखो. ये सब चीज आज के होमवर्क में फेयर बुक में ही सेंड करना है. मतलब 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, फेयर बुक में लिखो और रब बुक में भी लिखो, बट यू कैन डायरेक्टली राइट इन टू द योर फेयर बुक. Is it clear? So from starting from the first screen of this video lecture to up to the rule number 5. Is it clear? I hope so that everyone listen all these things or understood these 5 rules. You repeat this rule 5, learn well these all 5 rules and apply some examples whatever given in your supplementary book as well as through this video. Okay, so I hope that you understood well these things, and if you having any kind of the query, you just ask me. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Have a nice day. Thank you.